ओं जोग संन्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चयेन संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्वन्ते धनंजय। हे धनंजय, जे कर्म जोग विधि रे समस्त कर्म परमात्मा ठारे अर्पण करि दैछन्ति एवं जे विवेक द्वारा समस्त संशय नाश करि दैछन्ति से परि वशीकृत अंतकरण जुगत पुरुषंकु कर्म माने बांधि पारंती नाही। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। जोग संन्यस्त कर्माणाम पदरे जोग शब्दर अर्थ ज्ञान जोग बोली धरी यही पदर अर्थ ज्ञान जोग द्वारा शास्त्र विहित समस्त कर्म स्वरूपतः त्याग करिथिबा लोक बोली धरी नेले आपत्ति कौन? एठारे स्वरूपतः कर्म त्यागर प्रकरणर नाही। यही श्लोकरे जोग द्वारा कर्म मानंकु सन्यास करुथिबा मनुष्यंकु कर्म बांधि पारे नाही बोली जहा कुहा जायछि ताहाकु लक्ष्य करी परवर्ती श्लोकरे तस्मात् पद द्वारा अर्जुन को जोगरे अवस्थित होई युद्ध करने को भगवान आज्ञा देइछन्ति। जदि यही श्लोकर जोग संन्यस्त कर्माणम पदरे भगवान स्वरूपतः कर्म त्यागर अभिप्राय रखि थान्ते तेबे अर्जुन को सेपरी कही न थान्ते। तेणु एठारे जोग संन्यस्त कर्माणामर अर्थ स्वरूपत कर्म त्याग करि देइथिबा लोक बोली न धरी कर्मयोग द्वारा समस्त कर्मरे एवं ताहार फलरे ममत्व आसक्ति एवं कामना सर्वथा त्याग करी से सबु को परमात्मा ठारे अर्पण करि देइथिबा जोगी बोली धरिबा ही उचित। प्रकरण अनुसार उक्त पदर अर्थ यहा बोली ही जना पड़े। ज्ञान संचिन्न संशयम पदरे ज्ञान शब्दर अर्थ कौन? गीतारे ज्ञान शब्द केउ केउ श्लोकरे केउ केउ अर्थरे व्यवहार करा जायछि। उपरोक्त ज्ञान शब्द हेउछि जे कौनसी वस्तुर मध्य स्वरूप विवेचन करी तद विषयक संशय नाश करि देइथिबा विवेक शक्तिर वाचक। ज्ञान अवबोधने यही धातुर्थ अनुसार ज्ञानर अर्थ जानिबा। तेणु गीतार प्रकरणर अनुसार ज्ञान शब्द निम्नलिखित प्रकार भिन्न भिन्न अर्थरे व्यवहृत होइछि। द्वादश अध्याय 12 श्लोकरे ज्ञान अपेक्षा ध्यान एवं ध्यान अपेक्षा कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ बोली कहा जायछि। तेणु सेठारे ज्ञानर अर्थ शास्त्र एवं श्रेष्ठ पुरुष मानक ठारू मिलुथिबा विवेक ज्ञान। त्रयोदश अध्यायर 17 श्लोकरे ज्ञेयर वर्णनारे विशेषण रूपरे ज्ञान शब्द आसे। एणु सेठारे ज्ञानर अर्थ हेउछि परमेश्वरंक नित्य विज्ञानानंद घन स्वरूप। अष्टादश अध्याय 42 श्लोकरे ब्राह्मणंक स्वाभाविक कर्मर गणनारे ज्ञान शब्द आसीछि। एठारे ज्ञानर अर्थ शास्त्र अध्ययन
ଅଧ୍ୟାପନ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର 36 ଠାରୁ 39 ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। କାରଣ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମ ଭସ୍ମ କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ସବୁଠାରୁ ବଳି ପବିତ୍ର, ଯୋଗ ସିଦ୍ଧିର ଫଳ ଏବଂ ପରମ ଶାନ୍ତିର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର 16 ଶ୍ଲୋକରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଥିବା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁସାରେ ଏପରି ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 21 ଶ୍ଲୋକରେ ଜ୍ଞାନ ନାନା ବସ୍ତୁ ତଥା ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୁଝିବାର ଦ୍ୱାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ଶ୍ଲୋକରେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ସାଧନା ସମୁଦାୟର ନାମ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର 3 ଶ୍ଲୋକର ଯୋଗ ଶବ୍ଦ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନର ଶବ୍ଦ ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ଅର୍ଥରେ ଆସେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରସଙ୍ଗାନୁସାରେ ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି, ତାହା ସେଠାରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚିନ୍ନ ସଂଶୟମ୍ ପଦର ଜ୍ଞାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମାନି ନିଆଯାଏ ତେବେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପରେ ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ସମୂଳେ ନାଶ ହୋଇ ତତ୍କାଳ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଧନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମାନିବା ଠିକ ନୁହେଁ, କାରଣ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ କର୍ମଯୋଗର ଫଳ ଏବଂ ଏହାର ପର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାନ ଜନିତ ସଂଶୟ ନାଶ କରି କର୍ମଯୋଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେପରି ଅର୍ଥ କରାଯାଇଛି ତା ଠିକ ଜଣାଯାଇଛି। ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ନାଶ କରିଦେବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତେବେ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ପରଲୋକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଅଛି ତେବେ ତାହା କିପରି ଓ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଏସବୁ ଆତ୍ମା ନା ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ଜଡ଼ ନା ଚେତନ? ବ୍ୟାପକ ନା ଏକଦେଶୀୟ? କର୍ତ୍ତା ଓ ଭୋକ୍ତା? ଜୀବାତ୍ମା ନା ପ୍ରକୃତି? ଆତ୍ମା ଏକ ନା ଅନେକ? ଯଦି ଏକ ତେବେ କିପରି ଏବଂ ଯଦି ଅନେକ ତେବେ ମଧ୍ୟ କିପରି? ଜୀବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ପରତନ୍ତ୍ର? ଯଦି ପରତନ୍ତ୍ର ତେବେ କିପରି ଏବଂ କାହାର ପରତନ୍ତ୍ର? କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ଛାଡ଼ିଦେବା ଠିକ ନା କର୍ମଯୋଗ ଅନୁସାରେ ତା କରିବା ଠିକ ନା ସାଂଖ୍ୟଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସାଧନା କରିବା ଠିକ?
इत्यादि इत्यादि जो विभिन्न प्रकार शंका तर्कशील मनुष्य मानक अंतकरण ठारे उठे ताहार नाम संशय। यही सबु शंका मानकु विवेक ज्ञान द्वारा विवेचना करी एक निश्चय करिदेवा अर्थात कौन सी विषय रे मध्य संशय युक्त न करिवा न रहिवा एवं निजर कर्तव्य निर्धारण करिदेवा ही विवेक ज्ञान द्वारा समस्त शंका नाश करिदेवा। एठारे आत्मवंतम पदर भाव कौन ना आत्म शब्द वाच्य इंद्रिय सामानक सहित अंतकरण उपरे जहांकर पूर्ण अधिकार रहिछि अर्थात जहांकर मन ओ इंद्रिय माने निज बसरे अछंती सेही मनुष्यंक पाई एठारे आत्मवंतम पद प्रयोग करा जाइछि। उपयुक्त विशेषण युक्त पुरुषंकु कर्म बांधिबारे नाही एपरि कहिबार भाव कौन ना यह द्वारा देखाई दिया जाइछि जे उपयुक्त पुरुषंकर शास्त्र विहित कर्ममान ममत्व आसक्ति एवं कामनारु सर्वथा रहित हुए। तेणु सेई कर्म मानंकरे बंधन करिवार शक्ति रहे नाही। एपरि भावरे कर्मयोगींकर प्रशंसा कले वर्तमान अर्जुन को कर्मयोगरे अवस्थित होई युद्ध करिवाकू आज्ञा देवा उचित सहित भगवान यही अध्यायर उपसंहार करिसंति। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं परमात्मने नमः। ओं तस्माद् ज्ञान संभूतं भूतं स्तं ज्ञानसिनात्मना छिन्तीनं संशयं जोग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तेणु हे भरत वंशीय अर्जुन तुमे विवेक ज्ञान रूपक तरवारी द्वारा हृदय रे रहिथिबा निजर अज्ञान जनित संशय छेदन करी ममत्व रूपक कर्म योग रे स्थित हुओ एवं युद्ध पाई ठिया होई जा। एठारे तस्मात् पदर भाव कौन हेतुवाचक तस्मात् पद प्रयोग करी भगवान अर्जुन को कर्म योग रे अवस्थित हेबाकू उत्साहित करिसंति। अभिप्राय यही कि जे पूर्व श्लोक रे वर्णित कर्म योग रे अवस्थित मनुष्य कर्म बंधन रु मुक्ति होई जांती। तेणु अर्जुन मध्य सेपरी होई जिबा उचित। भारत संबोधनर तात्पर्य कौन? भारत संबोधन द्वारा भगवान राजर्षि भरतंक चरित्र स्मरण कराई देई देखाइछंती। राजर्षि भरत अत्यंत कर्मठ साधना परायण ओ उत्साही पुरुष थिले। तुमे मध्य ताहांक कूलरे उत्पन्न होइछ। एणु तुमे मध्य ताहांक परि वीरता धीरता एवं गंभीरता पूर्वक निजर कर्तव्य पालन करने को तत्पर हेबा उचित। एनम पद सहित संशय पद एठारे केउ संशय रे वाचक एवं ताहा सहित अज्ञान संभूतम एवं हृतम यही दुई विशेषण प्रयोगर तात्पर्य कौन? 41 श्लोक रे
ज्ञान संचिन्न संशय पदरे जो संशय उल्लेख होइछि तथा जहार स्वरूप सेई श्लोकर व्याख्या विस्तार भाव रे कराई दिया जाइछि। एठारे एनम पद सहित संशयम पद हेउछि ताहार वाचक। ता सहित अज्ञान संभूतम विशेषण देई भगवान देखाई देछन्ति जे अविवेक ही यही संशयर कारण। तेणु विवेक द्वारा अविवेकर नाश होई जिवा मात्रे संशय मध्य नाश होई जीव। हृत्तम विशेषण देई देखाई देछन्ति जे यार स्थान हेउछि हृदय बा अंतकरण। एणु जहांकर अंतकरण निज बसरे अछि तांको पक्षरे यहा नाश करिवा सहज। अर्जुन को यही संशय छेदन कर बोली कहिवार अभिप्राय कौन? अर्जुन को अंतकरण रे कौन एपरी संशय थिला? प्रथमे युद्ध को उचित बोली बुझी ही अर्जुन लड़िबा पाई प्रस्तुत होई रणभूमि को आसीथिले एवं से भगवान को दुई सेनांक मध्यरे रथ स्थापन करिबा को कहिथिले। पुणे जेतेबेले से दुई सेना मध्यरे थिबा निजर बंधु बांधवं को मरिबा पाई प्रस्तुत होई जिबार देखिले सेतेबेले से मोह हेतु चिंतामग्न होई गले एवं युद्ध को पाप कर्म बोली भाबिबा को लागिले। तापरे भगवानंक द्वारा युद्ध करिबा को कुहा गले मध्य से निजर कर्तव्य निश्चय पारिले नाही बोली एवं किं कर्तव्य विमूढ़ होई करिबा को लागिले। मु गुरुजनक सय किपरि युद्ध करिबी ओ मो पक्षरे कौन करिबा श्रेष्ठ एवं एही युद्ध रे कहार विजय हेबो ताहार किछि निश्चितता नाही। तेणु मो पाई जहा कल्याणकर हेबो ताहा आपण कहि दियंतु। मोर चित्त मोहित होई जाइछि। एहा द्वारा स्पष्ट होई जाउछि जे अर्जुनंकर अंतकरण रे संशय विद्यमान थिला। तांकर विवेक शक्ति मोह हेतु टिके दबी जाइथिला। तेणु से निजर कर्तव्य निश्चय करि पारि नथिले। या छड़ा षष्ठ अध्याय रे अर्जुन कहिथिले मोर संशय छेदन करिवा को आपण ही समर्थ एवं गीतार उपदेश सुनि सारिला परे अर्जुन कहिथिले मु संदेह रहित होई गली एवं भगवान मध्य स्थाने स्थाने अर्जुन को कहिथिले मु तुमको जहा किछि कहूची सेथिरे कौनसी संशय नाही, तुमे शंका करो नाही। यहा द्वारा सिद्ध हुए जे अर्जुन को अंतकरण रे संशय थिला एवं तेणु से निजर स्वधर्म पूर्वक युद्ध त्याग करने को प्रस्तुत हो जाइथिले। तेणु भगवान एठारे तांको हृदय रे थिबा संशय छेदन करने को कही जणाई दैछन्ति। मु तुमको जेउ आज्ञा देउछि सेथिरे कौनसी शंका न करी ताहा पालन करने को तुमे प्रस्तुत हो जिबा उचित। एठारे अर्जुन को निजर आत्मार संशय छेदन करने को कहिबार अभिप्राय कौन? यहा द्वारा भगवान जणाई दैछन्ति तुमे मोर भगत एवं सखा। एणु अन्य मानकर अंतकरण रे मध्य जदि किछि शंका थाए तेबे सेमानंको बुझाई ताहा छेदन कर। तुमे जदि से परि करि न पारुछ अति कम रे निजर संशय छेदन करिदेवा ही उचित।
ଯୋଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ ବୋଲି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଅଧ୍ୟାୟର ଉପସଂହାର କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କିଛି କହୁଛି ତାହା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି। ଏଣୁ ଏଥିରେ ଶଙ୍କା ରହିତ ହୋଇ ତୁମେ ମୋର କହିବା ଅନୁସାରେ କର୍ମଯୋଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ। ଏପରି କଲେ ତୁମର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।